Welcome back and Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you're watching this video at Al Karam School of Thoughts. हम कवर कर रहे हैं 1973 Constitution of Pakistan and most important 200 MCQs of that Constitution. सबसे पहला इसका MCQs है the power to tax and spend is vested in which body according to the Constitution. किस बॉडी के पास टैक्स और स्पेंड करने की ताकत है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? That is National Assembly is the right answer. Who acts as the Chancellor of the Universities in Pakistan as per the Constitution? कानून के हिसाब से कौन है तमाम तर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का चांसलर? Right answer is President. The concept of Qaid-e-Azam as the father of the nation is recognized in which part of the Constitution? किस हिस्से में जो जिना है उनको कौम का फादर कंसीडर किया गया है? क्या वो प्रीएम्बल है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है या फिर कोई और आर्टिकल है? The right answer is B. Objective resolution. The Constitution guarantee due process of law under which article? आर्टिकल 10A के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन वो गारंटी करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. विच आर्टिकल डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट इन पाकिस्तान? राइट आंसर इज आर्टिकल 90. Who presides over the Senate session in the absence of chairman? अगर चेयरमैन ना हो तो सेनेट सेशन को कौन प्रिजाइड करता है? It is right answer is B. Deputy Chairman of the Constitution says that Prime Minister must have the confidence of Constitution के मुताबिक जो Prime Minister है उसको किसका confidence इन तमाम में से होना चाहिए? The National Assembly sees the right. The Provincial Assembly's power to legislate are enumerated in which constitutional list? Right answer is C. Provincial legislative. The Constitution recognize which Islamic institution to suggest Islamic legislation? इन तमाम में से कौन सा? इन तमाम में B is the right answer. Council of Islamic Ideology को जो Constitution है वो recognize करता है as an Islamic institution to suggest Islamic legislation. The removal of Chief Justice requires approval of which body? अगर Chief Justice को हटाना तो किस बॉडी का अप्रूवल लाजमी चाहिए होगा? C. सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अप्रूवल लाजमी है चीफ जस्टिस को हटाने. Which article provides the national flag of Pakistan? पाकिस्तानी फ्लैग का जिक्र किस आर्टिकल के अंदर हुआ है? तो किसी भी आर्टिकल के अंदर नहीं. D. The Constitution does not specify about the national flag of Pakistan. The Constitution was suspended during which of the following years? तो A is the right answer among all of them. 77 में भी मार्शल लॉ था और 99 में. और किन किन सालों के अंदर मार्शल लॉ रहा है? क्या कोई माइगा लाल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा? Constitution states that law inconsistent with fundamental rights. अगर कोई ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हो, गैर आहंग हो, तो उसका क्या होगा? वो automatically invalidate हो जाएगा, invalid हो जाएगा. The Constitution of Pakistan 1973 was first published in which in official gazette when April 12, 1973. Article 251 of the Constitution of Pakistan pertains to 251वां जो आर्टिकल है उसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताया गया है. कौन कौन सी हैं? इंग्लिश और उर्दू दोनों सरकारी जुबानें हैं. द पावर टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज वेस्टेड इन. अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो पावर का किधर है? पावर किधर है? इन चारों में से ज़रा गौर से देखेंगे तो आपको ये सही लगेगा. प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन रिमूव चीफ इलेक्शन कमीशन. The 18th Amendment to the Constitution significantly curtailed the power of the President under Article 58. Which schedule of the Constitution deals the legislative list? Right answer is 4th schedule deals with the legislative lists. The Constitution empowers the Supreme Court to review any law to determine its. जो सुप्रीम कोर्ट या कानून ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो रिव्यू कर सकें किसी भी कानून को. किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए? इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स टू अ फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 10A. फेयर ट्रायल आपको मिलेगा आर्टिकल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. विच आर्टिकल अबॉलिशेस स्लेवरी एंड फोर्स लेबर? किस आर्टिकल के तहत
स्लेवरी, गुलामी और ये जो सख्ती से किसी से काम करवाना है वो अबॉलिश करता है आर्टिकल 11 ए इज द राइट आंसर. The Constitution confers the President the power to grant pardons under which article? Under Article 48, the President is conferred such sort of powers to pardon anyone. मतलब 48वें आर्टिकल के तहत सदर पाकिस्तान किसी को भी माफ कर सकते हैं. Who can declare emergency in Pakistan as per the Constitution? पाकिस्तान के अंदर कौन इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है कानून के तहत? वैसे आपको तो लगता होगा आर्मी चीफ ही ये कर सकता है, बट कानूनी तौर पे ओनली प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन पाकिस्तान. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ विमेन राइट्स अंडर विच आर्टिकल? काफ़ी अहम आर्टिकल्स हैं, पूछे जा सकते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 25 और 34 के तहत ख़वातीन को उनके हुकूक को इंश्योर कराता है. आर्टिकल 19 गारंटीज विच फंडामेंटल राइट? काफ़ी अहम है ये. जो 19वां आपका आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड प्रेस के बारे में. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स रिलीजियस माइनॉरिटीज अंडर विच आर्टिकल? आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटी हमारे जो भाई दोस्त हैं उनको प्रोटेक्शन देता है अंडर आर्टिकल 36. C is right answer. The Constitution places the judiciary under the supervision of which body? जो आपकी अदलिया है वो किस बॉडी की सुपरविजन के अंदर है? मतलब कौन सी बॉडी ने अदलिया के ऊपर चेक रखा हुआ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? बी इज राइट आंसर. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ही, ये वही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जो कि किसी भी जज को हटाने के लिए जिसका अप्रूवल जरूरी है, किसी भी चीफ जस्टिस को. The second amendment to the Constitution of Pakistan declared which community as non-Muslim? तो अहमदीज से मुताल्लिक थी second amendment. Fourth amendment 1975 removed the judiciary power to grant bail to whom? तो this was about any person detained under preventive detention laws. B is right answer. The 18th amendment 2010 is famous for, बहुत ही अहम amendment है ये, for काफ़ी इसने चेंजेस की थी आपकी लीगल ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसके अंदर. तो it is famous for renaming NWFP to KPK and curtailing presidential power to dissolve the assemblies, etc. Which amendment restored paramilitary sovereignty and reduced presidential power, especially the power to dissolve the National Assembly? That was once again 18th amendment. 21st amendment in 2015 relates to the ऑप्शन ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक थी. 21वीं अमेंडमेंट जो 2015 के अंदर. 25th अमेंडमेंट डील्स विद, जो सेकंड लास्ट अमेंडमेंट हुई वो किससे मुतल्लिक थी? वो मुतल्लिक थी मर्जिंग फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज फाटा विद KPK. और आखिरी अमेंडमेंट की कौन सी थी? 26वीं थी दोस्तों. टोटल 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं अब तक. विच अमेंडमेंट डेल्ट विद एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी? तो 22वीं अमेंडमेंट थी दोस्तों. मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट के अंदर पाक अफेयर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है. उसके अंदर मैंने पाकिस्तान के 10,000 वन लाइनर कवर कराए हैं पाकिस्तान अफेयर के. उसके अंदर मैंने अमेंडमेंट्स के नाम से एक अलग से टॉपिक कवर कराया हुआ है जिसके अंदर तमाम की तमाम 26 जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने डिटेल एक्सप्लेन. द 26th amendment 2024 was about fixing the term of Chief Justice of Pakistan. One of the most important amendment that was made into the Constitution, which is called 8th Amendment, was introduced by which ruler? तो वो भाई साहब जो रूलर थे वो ज़ियाउल हक साहब थे और ये वही थे जिन्होंने सदर की पावर को काफ़ी बढ़ा दिया था. Which article validates the martial law proclamation of 5 July 1977 and related order? तो वो आर्टिकल था 270A. Which amendment inserted Article 2A making the objective resolution as a part of the Constitution?
तो ये थी सबसे पहली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ मेकिंग पावर रिलेटिंग टू डिफेंस ऑफ पाकिस्तान लाइज विद पाकिस्तान के डिफेंस से मुतालिक लॉ बनाने की ताकत कहाँ पे है? It is in the parliament. The power to appoint the chief of army staff resides with. ये सारे काम सदर ही करेगा. B is the right answer. The first schedule of the constitution of Pakistan. कितने शेड्यूल्स हैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ. कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं टोटल कितने शेड्यूल्स हैं पाकिस्तान के. और जो उनमें से पहला शेड्यूल है वो किस से मुताल्लिक है, किस बारे में है? दिस इज अबाउट boundaries and territories of Pakistan. The fundamental rights to access information in all matters of public importance is protected under which article 19A के 19A आर्टिकल के तहत दिया गया है. And last but not least, equality of citizens with no discrimination on the basis of sex, race, caste or religion is guaranteed under which article? The right answer is 25. Please subscribe and like the video. Pakistan Zindabad.